you? Hope you are fine. Thank you for having me. My name is Rakesh Singh and hope you understand the chapter which you have read by now. Now we are going to proceed this chapter further. The chapter is digestion and absorption, and this is my third lecture about this chapter. Today we will be studying about digestive system of human. The chapter is digestion and absorption, and we are starting about digestive system of human. Now this digestive system has been classified into, you can classify it into two parts. आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो आप एलिमेंट्री कनाल कह लें, जिसे आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, और दूसरा the accessory organ associated with this digestive tract, like liver, salivary gland, gallbladder, pancreas, etc. So the digestive system of human has been classified into two parts: the alimentary canal, also known as gastrointestinal tract, and the accessory organ, the organ which is associated with the digestive tract. For example, our alimentary canal is associated with liver, salivary gland, gallbladder, and pancreas, which helps in digestion of food. So these are the digestive system of human. Now next, the alimentary canal. There is a question, very good question for you, and the question is the length of alimentary canal is longer in herbivores in comparison to carnivores. Now what is the answer? Let me explain it for you. The length of alimentary canal is longer in herbivores in comparison to carnivores. The reason is very simple, because the herbivores have to digest cellulose, have to digest cellulose, and the digestion of cellulose takes a longer time, and that's why the alimentary canal of herbivores is longer than carnivores, and we can say that especially the small intestine part is quite longer in herbivores. मैं ये कह सकता हूं
कि हर्बीवोर्स में खास करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो लॉन्गर होता है, जिसके कारण उसकी एलिमेंट्री कनाल लंबी हो जाती है। द एलिमेंट्री कनाल गेट्स लॉन्गर ऑफ हार्बीवोर्स इन कार्निवोर्स। अब मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन और भी है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होती हैं उसकी एलिमेंट्री कनाल शॉर्टर क्यों होती हैं, छोटी क्यों होती हैं हर्बीवोर्स की कंपैरिजन में? वेरी सिंपल, क्योंकि जो कार्निवोर्स होता है दे मेनली कंज्यूम मीट, ये मीट खाते हैं खास करके, और जो मीट होती हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं, और इसका बहुत सिंपल तरीके से हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कनाल में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दे आर readily absorbed by our gut elementary canal, and that's why we can say that the elementary canal of carnivores are very shorter than herbivores, because these carnivores consume meat and the meat is digested into amino acid which is readily absorbed by our gut elementary canal. So they have very shorter elementary canal. The length of elementary canal is quite shorter in carnivores in comparison to herbivores. And now why the herbivores has longer elementary canal, this I explain to you. Now the next thing is that ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आप ह्यूमन के लेंथ ऑफ elementary canal of human is approximately 9 मीटर लॉन्ग। अगर मैं ह्यूमन के एलिमेंट्री कनाल की लेंथ पूछूं आपसे कितनी होती है ह्यूमन के एलिमेंट्री कनाल का लेंथ, तो वो होता है 9 मीटर लॉन्ग। एंड व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल? दे आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ये एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब होती है इन विच फूड इज डाइजेस्टेड, जहां पे खाने का डाइजेशन होता है। वेरी सिंपल, द एलिमेंट्री कनाल आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। अब ये कह सकते हो दे आर लॉन्ग इर्रेगुलर, दे आर लॉन्ग irregular muscular tube in which the food is digested. And now what are the parts of elementary canal of human? अगर मैं if I ask the parts of elementary canal, now if I ask you about the parts of elementary canal, तो मैं ये कह सकता हूं कि the complete elementary canal has been divided into 3 parts. अब पूरे elementary canal को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। The complete elementary canal has been divided into 3 parts. The first is foregut, the second is midgut, and the third one is hindgut. एलिमेंट्री कनाल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है फोरगट, दूसरा है मिडगट और तीसरा है हिंडगट। आप फोरगट को स्टोमोडियल रीजन भी कह सकते हो। द फोरगट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमोडियल रीजन, STOMODEAL, स्टोमोडियल रीजन। मिडगट को आप मेसेंटेरॉन भी कह सकते हो। The midgut can also be called as mesenteron. फोरगट को आपने स्टोमोडियल रीजन कहा,
मिडगट को आपने मेसेंटेरॉन कहा और हिंडगट को आप प्रोटोडियल रीजन कह सकते हैं। इसको आप प्रोटोडियल PROTODEAL प्रोटोडियल रीजन भी कह सकते हैं। आप याद रखिएगा बेटा पे, दिस इज स्टोमोडियल रीजन, दिस इज मेसेंटेरॉन रीजन एंड दिस इज प्रोटोडियल रीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट से फोरगट, मिडगट और हिंडगट, और मैं अगर इसकी ऑरिजिन के बारे में पूछूं तो मैं इसका ऑरिजिन ये बताऊंगा कि फोरगट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। हमारी फोरगट की ऑरिजिन एक्टोडर्मल होती है। और अगर मैं मिडगट की बात करूं तो मैं इसे कह सकता हूं एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, और अगर मैं हिंडगट की बात करूं तो मैं इसे कह सकता हूं एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये एक्टोडर्मल होता है। तो तीनों की ऑरिजिन अलग अलग है, ये याद रखना है इसको। फोरगट का ऑरिजिन एक्टोडर्म से होता है, मिडगट का ऑरिजिन एंडोडर्म से होता है और हिंडगट का ऑरिजिन एक्टोडर्म से होता है। आपको ये पता होगा कि एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स जो मैंने डिवाइड किए, ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स को डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट को हमने स्टोमोडियल रीजन कहा, मिडगट को हमने मेसेंटेरॉन कहा और हिंडगट को हमने प्रोटोडियल रीजन कहा। और मैंने इनके ऑरिजिन के बारे में डिसाइड कर दिया, बता दिया आपको वहां पे। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं फोरगट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फोरगट, अगर मैं फोरगट की बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट फोरगट के अंदर आता है, तो आप इसे सिर्फ याद रखना। देखो ये तरीका बता दो, शॉर्टकट तरीका याद करने का। स्टार्टिंग का दोनों पार्ट और लास्ट की दोनों पार्ट फोरगट और हिंडगट में आती है, बीच वाली सारी पार्ट मिडगट में आती हैं। अब बता दो, फोरगट स्टार्टिंग का मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग की दोनों पार्ट्स किस में आती है बेटा, स्टार्टिंग की दोनों पार्ट जो होती है वो फोरगट में आती हैं। और उसमें क्या होगा बताओ, सबसे पहले माउथ और उसके बाद एसोफेगस, ये हमारे फोरगट की पार्ट है। चलिए एक बात हिंडगट का भी लिख लें, और अगर मैं आपको हिंडगट के बारे में बताऊं तो हिंडगट में लास्ट वाले दोनों पार्ट लिख लें। एक तो आप लिख लें रेक्टम और दूसरा आप लिख लें एनस। अब आप मिडगट की आ जाए बेटा पे, जो बीच वाले सारे पार्ट्स हैं वो मिडगट में आएंगे। अब बताइए ईसोफेगस के बाद क्या होगा, स्टमक। ईसोफेगस के बाद स्टमक। अच्छा ये बताइए स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की सारी पार्ट्स मिडगट में नहीं होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, उसके बाद कोलोन। जो सीकम होती हैं और जो कोलोन होती हैं वो मिडगट में आती हैं, और लास्ट वाला जो रेक्टम और एनस है वो हिंडगट में आएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट में आ गया माउथ और ईसोफेगस, मिडगट में आया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और कोलोन। आपको पता है स्टमक की 3 पार्ट्स होती हैं, कार्डियक। वैसे अब नई वाले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो 4 पार्ट दे रखा है। स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। अगर स्टमक के पार्ट्स देखें तो 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट, duodenum, jejunum, ileum. Cecum is the part of large intestine, colon is the part of large intestine, और इसके बाद rectum और anus is also a part of large intestine, but it is the part of hindgut. इसे हम hindgut कहेंगे। तो the complete alimentary canal has been divided into 3 parts, foregut, midgut और hindgut। और मैंने इनका origin यहां बता दिया। देखो फोरगट को हम स्टोमोडियल रीजन भी कहते हैं,
मिडगट को हम लोग मेसेंटेरॉन भी कहते हैं और हिंडगट को हम लोग प्रोटोडियल रीजन भी कहते हैं। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है और इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। तो मैंने एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में सारी बातें बता दी। मैंने हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के एलिमेंट्री कैनाल के लेंथ को कंपेयर करके बताया। अब जो मैं आगे आपको फर्दर बताने जा रहा हूं वो है हमारा फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा अगला क्वेश्चन है और जो आप पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं फंक्शन पूछूं आपसे, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप क्या बताओगे? एक पहला फंक्शन, यू नो इट, पहला है इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है एसिमिलेशन और उसके बाद है इजेशन। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। डाइजेशन, पहले इंजेशन, आप जब खाने को इनगल्फ करते हो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन, आप जो खाना खाते हो वो सॉलिड और इनसॉल्युबल फूड होती हैं, उसे आप सिंपल और सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट करते हो। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब। उसके बाद एसिमिलेशन, आपकी बॉडी डाइजेशन के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में आएगा इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड्स को, वेस्ट को निकाल देना थ्रू एनस, एंड दिस इज नोन एज इजेशन। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहां पे एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जब आप एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। यह ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे अंदर अगर आप देखें तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसे हम कहेंगे म्यूकोसा। दिस इज द म्यूकोसल लेयर। अगर आप इन लेयर्स को अरेंज करके प्रॉपरली देखें तो ये जो लेयर है सबसे इनर मोस्ट है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं आपको, दिस इज नोन एज म्यूकोसा। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसके बाहर आए तो इसके बाहर जो लेयर दिखेंगी आपको उसे हम कहेंगे सब म्यूकोसा। दिस इज सब म्यूकोसा। अच्छा, उसके बाद इसके बाहर अगर आप आए तो मसल्स की दो लेयर मिलेंगी आपको जिसको मस्कुलरिस कहते हैं। एक
अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं. मैं अंदर से बाहर की तरफ इन लेयर्स का नाम बता रहा हूं. डायग्रामेटिकली देखो आप यहां पे बोर्ड पे. सबसे अंदर है म्यूकोसा. द इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकोसा. द नेक्स्ट आउटर टू द म्यूकोसा इज सब म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा है और सब म्यूकोसा के बाहर 2 मस्कुलर लेयर होती हैं जिन मस्कुलर लेयर को मस्कुलरिस कहते हैं और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं. आपको ये पता होगा कि स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और मैं आगे बताऊंगा इन सभी लेयर्स के फंक्शंस के बारे में. These are involuntary muscles and the 2 layer of muscles are inner circular muscles. ये बेसिकली सर्कल में होती हैं. inner circular and outer longitudinal muscles. इन दोनों को एक साथ muscularis कहते हैं. और आउटर मोस्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा है और इस सेरोसा को हम पेरिटोनियम भी कहते हैं और इसे एडवेंटिशिया भी कहते हैं. तो दिस इज द कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो डायग्रामेटिकली आपको मैंने बताया. इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा है. अब ये कह सकते हैं म्यूकोसा जो होती हैं वो इनर मोस्ट लेयर होती हैं और सेरोसा जो होती हैं वो आउटर मोस्ट लेयर होती है. तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब इन लेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं. जैसा सबसे इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा है और अगर आप म्यूकोसा के लेयर्स की बात करें तो मैंने बता दिया आपको यहां पे म्यूकोसा की 3 लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स होती हैं. एक सबसे पहले म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स का लेयर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. ये क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल इंटरनली किस एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती हैं, या आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसा है वो किस तरह का एपिथेलियल टिश्यूज हैं. तो बता देना वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है. अच्छा, आपको यह पता है कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कोई भी एपिथेलियल टिश्यूज एक मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. देखिए बेटा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो मैंने यहां पे लेबलिंग कर दिया, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है और ये एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. अच्छा, उसके बाद इसके नीचे ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नीचे एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है. लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है और इस लूज कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर को हम लोग कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया. लैमिना प्रोप्रिया एंड इट्स अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. आप जब क्लास 11 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और जब आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन कर रखा है तो वहां बता रखा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह की होती हैं. एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. और वहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, याद रखिएगा बेटा भाई, आपका जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये आपके स्किन के नीचे होता है. ये आपके स्किन के नीचे होता है और आपके यहां आप उस एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है. दे एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू. तभी तो मैंने कहा कि इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं. मैंने इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को लैमिना प्रोप्रिया कहा है, जिसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं. याद रखिएगा इसको बेटा. और ये आपके एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. और एनसीईआरटी में गिवन है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, 2 तरह की होती हैं, उनमें से एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये आपके एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. एनसीईआरटी में
एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में ये स्टेटमेंट गिवन है और ये एंट्रेंस का क्वेश्चन हो सकता है। आगे आओ, इसके नीचे एक मसल्स की लेयर होती है, जैसे कहते हैं सबसे नीचे इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी नीचे एक मसल्स की लेयर होती है, जैसे कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। चूंकि ये म्यूकस का मसल्स है इसलिए मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। अब इन तीनों लेयर्स के मिलने से इस कंप्लीट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकोसा। यानी म्यूकोसा इन 3 सब लेयर्स की बनी हुई है। अब एक बात और याद रखिएगा, इस म्यूकोसा में कुछ वाइडली डिस्पर्स्ड सेल्स होती हैं जिसे गॉबलेट सेल कहते हैं। यह है आपका गॉबलेट सेल। अब गॉबलेट सेल है क्या? अगर मैं पूछूं आपसे कि गॉबलेट सेल क्या है तो बता देंगे, दे आर वाइडली डिस्पर्स्ड इन म्यूकोसा ऑफ elementary canal and secretes what they secretes mucus। ये mucus का secretion करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं इस गॉबलेट सेल के बारे में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ग्लैंड। अगर मैं पूछूं आपसे गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड तो बता देंगे आप गॉबलेट सेल। मैं ये लिख दूं यहां पे, गॉबलेट सेल इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल एक तरह की यूनिसेलुलर ग्लैंड भी कहते हैं इसे। और गॉबलेट सेल हमारे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा में वाइडली डिस्पर्स्ड होती हैं और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। म्यूकस का रोल मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल मैंने आपको अभी जो बताया वो म्यूकोसा के बारे में बताया, स्ट्रक्चरल डिटेल मैंने डिस्कस किया अभी आपको। अब मैं आपको म्यूकोसा के बारे में और भी डिटेल बातें बताने जा रहा हूं, एक एक करके। पहली बात याद रखिएगा कि हमारे टंग के सरफेस के ऊपर पैपिले होती हैं। एंड व्हाट इज दिस पैपिले? द फोल्डिंग ऑफ म्यूकस membrane on surface of tongue। हमारे टंग के सरफेस के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है, उसे पैपिले कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम। पैपिले के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं। नेक्स्ट, अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक में आती हैं रुगी। स्टमक में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं रुगी। और ये रुगी है क्या तो बता देंगे, द एम्प्टी स्टमक हैज टेम्पररी, ये वर्ड याद रखें बेटा भाई, टेम्पररी फोल्ड ऑफ म्यूकोसा है ना। हमारे एम्प्टी स्टमक में याद रखना, ये रुगी जो होती हैं वो एम्प्टी स्टमक में बनती है। जब स्टमक खाली होता है तब ये बनता है बेटा पे। इट्स अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक खाली होता है तब ये बनता है। तो रुगे इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। मैंने कह दिया, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, द एम्प्टी स्टमक हैज अ टेम्पररी फोल्ड ऑफ म्यूकोसा known as रुगी। उसे हम कहते हैं रुगी। ठीक है भाई। और बताओ मुझे, अगर मैं रुगी का फंक्शन पूछूं, व्हेन आई आस्क द फंक्शन ऑफ रुगी, तो आप ये बता देना। दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या करता है ये? हमारे स्टमक के एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को इंक्रीज करता है जब हमारा स्टमक एक्सपैंड करता है। It helps to increase the surface area to volume ratio of the expanding stomach. It's a very important function for you. याद रखना बेटा पे। रुगे का फंक्शन बता दिया मैंने आपको। It increases the surface area to volume ratio of
एक्सपैंडिंग स्टमक, एक्सपैंडिंग स्टमक। और मैं एक बात और कह सकता हूं रुगे के बारे में, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ये आपके स्टमक में खाने के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो these are the two basic function of ruge. In NCERT the ruge has been mentioned but the function is not clear, so I just clear the function of ruge. Now सुनो, मैंने सबसे पहले पैपिले बताया, फिर मैंने आपको रुगे बताया, अब मैं जो उसके बाद बताने जा रहा हूं वो है रुगे के बाद अगला टॉपिक जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाओ। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे विली होती है, और आपको पता है विली क्या होती है, द परमानेंट, याद रखना है इसको, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। दिस रुगे इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर बट द विली इज द परमानेंट स्ट्रक्चर। द परमानेंट फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज विली। और आप सभी को पता है विली क्या करता है, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एंड द सिंगल वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विली। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट में मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, मैं लिख दूं इसके बारे में। देखो, द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेक्टम, रेक्टम का जो टर्मिनल पार्ट है इज एनल कनाल। हमारे रेक्टम के टर्मिनल पार्ट को, सबसे एंड वाले पार्ट को, टर्मिनल पार्ट को एनल कनाल कहते हैं। और इसी एनल कनाल में अगर मैं कहूं आपसे तो मैं ये कह सकता हूं कि इसी एनल कनाल में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन की वर्टिकल फोल्ड्स होती हैं जिसे एनल कॉलम कहते हैं। दे आर नोन एज द, देखो मैं लिख रहा हूं वहां पे, द वर्टिकल फोल्ड ऑफ म्यूकोसा इन एनल canal is anal column. My dear students, पूरे एलिमेंट्री कनाल में हमारी म्यूकोसा, हमारे एलिमेंट्री कनाल में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे हमारे टंग्स के सरफेस के ऊपर, हमारे टंग के सरफेस के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती हैं उसे पैपिले कहते हैं। जैसे हमारे एम्प्टी स्टमक में जब स्टमक खाली होता है तो वहां म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है, उसे रुगी कहते हैं। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है उसे विली कहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि रुगी जो होती है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ये हमेशा नहीं पाया जाता है, जब स्टमक खाली होती है तब बनता है ये। और इसका फंक्शन मैंने बता दिया, यह हमारे स्टमक के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को इंक्रीज करता है जब हमारी स्टमक एक्सपैंड करती हैं। दूसरा, ये हमारे स्टमक में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा, नेक्स्ट विली के बारे में बताया मैंने, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में परमानेंट स्ट्रक्चर है और ये फूड्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बता दिया आपको कि हमारे रेक्टम के टर्मिनल पार्ट को एनल कनाल कहते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेक्टम इज नोन एज एनल कनाल। और हमारे एनल कनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन की कुछ वर्टिकल फोल्ड्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की कुछ वर्टिकल फोल्ड्स होती हैं और उन वर्टिकल फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज वर्टिकल फोल्ड्स आर नोन एज एनल कॉलम। These vertical folds are known as anal column. मेरी बात को याद रखिएगा। मैं अब म्यूकोसा के बारे में
आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया और मैंने अभी आपको म्यूकोसा हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं, मैंने वो बताया। अब मैं आपको अगला टॉपिक, मैंने गॉबलेट सेल के बारे में डिस्कस कर दिया आपको वहां पे, इसका फंक्शन, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पता है, ये जितनी भी हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज होता है उनको ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है, और ये आपके एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और हमारे जस्ट इस म्यूकोसा के नीचे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो एक तरह की एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। मैं आगे बढ़ता हूं अब आपको, नेक्स्ट मैं आपको अभी म्यूकोसा के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं सब म्यूकोसा के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो बेटा, एक चीज याद रखना जो मैंने बताया है आपको वहां पे, और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक एंड क्रिप्स ऑफ लिवरकून्स, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होती हैं, और क्रिप्स ऑफ लिवरकून्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, इज फॉर्म्ड बाय म्यूकोसा। इसका फॉर्मेशन म्यूकोसा करता है। याद रखिएगा, हमारे स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा में होता है, और जो क्रिप्स ऑफ लिवरकून्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं उसकी फॉर्मेशन म्यूकोसा करती हैं। एंड इट हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी स्टेटमेंट। सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये दो विली है, और अगर मैं विली की बात करूं तो हमारे दो विली के बीच में एक, ये देखो ये दो विली है, और इस तरह से मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो हमारे दो विली के बीच में, दिस इज अ विली, और हमारे दो विली के बीच में एक डिप्रेशन होती है जिसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून्स। इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून्स, याद रखिएगा इसको। तो ये कौन बनाता है? ये म्यूकोसा बनाता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया आपको वहां पे। नेक्स्ट मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको वहां पे, अगर ये समझ गया आप, मिटा रहा हूं मैं इसे। अगर मैं आगे कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, माउथ, मैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूं, अगर हम माउथ एंड ईसोफेगस की बात करें तो याद रखना, दिस माउथ एंड ईसोफेगस इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। याद रखना, माउथ और ईसोफेगस जो होती हैं, दे आर नॉट लाइन्ड बाय सिंगल कॉलमनर एपिथेलियम, दे आर लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और आपको पता है स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लेयर्ड। They are lined by stratified squamous epithelium. Stratified वो epithelial cells जो बहुत सारे layers की बनी होती हैं उसको stratified कहते हैं। तो they are lined by stratified squamous epithelium. But next to this esophagus is stomach. उसके बाद next small intestine and लार्ज इंटेस्टाइन, ये किससे लाइंड होती हैं? लाइंड बाय सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। जो मैंने अभी कहा आपसे, मैंने कहा कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसा किस चीज की बनी हुई है? They are made up of simple columnar epithelium। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल मेनली कौन से एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती हैं, तो इसका सिंपल आंसर है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। किसको छोड़ के? माउथ और ईसोफेगस को छोड़ के। अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल को देखा जाए और पूरे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कहा जाए
अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात कही जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और इसोफेगस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से लाइंड होती हैं, लेकिन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. द रिमेनिंग पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. और आपको